Hello and welcome back to Computer Programming and Programming Methodology syllabus. We have discussed basics of any programming language, and the two basics which are required for any programming language are flowchart and the algorithm. So what is an algorithm? Algorithm is nothing but it is set of instructions written in common language, and we convert this algorithm into a diagram. Then that diagram is called a flowchart. Now let us proceed further in the theoretical portion only. So what is a language? Every now and then we use the word language. Language का मतलब क्या है? Language is nothing but it is system of communication between two or more persons. जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात करना है तो वो बात कैसे हम कर सकते हैं? लैंग्वेज के थ्रू बात कर सकते हैं. So language which is used by the human beings is called natural language, whereas the language which is used by the computer is known as computer language. Each language has systematic method of using symbols of that language, and those method is called the grammatical rules. The rules tell us which word to use and how to use. लैंग्वेज के अंदर आप सेंटेंस कैसे बोलोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें कहाँ डिफाइंड होती हैं? ग्रामेटिकल रूल्स में डिफाइन होती है. तो सिमिलरली द सिंबल्स ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड एज पर द रूल्स विच आर कॉल्ड सिंटैक्स. तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो रूल्स हैं वो रूल्स को क्या कहा जाता है? सिंटैक्स कहा जाता है. Now levels of programming language. Each computer has its own language which is known as programming language. And there are three levels of programming language. First one is machine level language, or you can say lower level language. Second one is assembly language or middle level language. And third level is called procedure oriented language, or you can say high level language. ये languages का जो definition है, it is from tough to easy. टफ टू ईजी लैंग्वेज. ओके, सबसे पहले जो लैंग्वेज थी वो बहुत टफ थी, एंड वो टफ होने की वजह से दूसरी और लैंग्वेजेस बनाई, एंड लैंग्वेजेस ऐसी बनती गई कि जो अभी करंटली लैंग्वेज हैं वो सबसे ईजी लैंग्वेजेस हैं. नाउ वी विल लर्न दिस लैंग्वेजेस वन बाय वन. द फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, और यू कैन से लो लेवल लैंग्वेज. Computers, as you know, are nothing but they are electronic machines, and as they are electronic machines means what? They can understand only two forms, either on or off. That is, on का मतलब होता है 1 and off का मतलब होता है 0, or it is also said pulse or no pulse. Therefore all the instructions and the data should be written using ones and zeros. तो कंप्यूटर को सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 1 and 0 वाली लैंग्वेज समझ में आती है, एंड दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइनरी कोड. द बाइनरी कोड इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर्स आर नॉट आइडेंटिकल इन डिज़ाइन. कंप्यूटर्स का डिज़ाइन सेम नहीं होता है, तो हर कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, एंड इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स होते हैं. पहली प्रॉब्लम है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड and remember various combinations of ones and zeros representing numerous instructions. हम एज ए यूज़र अगर हर कंप्यूटर के साथ वर्क करेंगे और हर कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज होगी तो हमें वो इंस्ट्रक्शंस याद करने के लिए बहुत टफ होंगे. हमें हर बार किसका कॉम्बिनेशन याद करना पड़ेगा? 0 and 1 का कॉम्बिनेशन याद करना पड़ेगा, एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. Since every machine has its own machine language, the user cannot communicate with other computers. अगर मैं एक कंप्यूटर पे बैठी हूँ तो मैंने एक कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख ली है, फिर एक कंप्यूटर पे वर्क करना मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस का कोड पता है, एंड मैं उसको आसानी से इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ. लेकिन इन फ्यूचर मैं अगर दूसरे कंप्यूटर पे माइग्रेट करना चाहती हूँ तो कंप्यूटर बी की लैंग्वेज मुझे वापस से सीखनी पड़ेगी, एंड बी की लैंग्वेज सीखने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा. So these are the problems which are possible in case of which language? Machine language. Then came the assembly language, or you can say middle level language. The language which substitutes letters and symbols in machine language is called assembly language.
अब जो इंस्ट्रक्शंस जो मशीन लैंग्वेज में 1 0 1 0 ऐसे फॉर्म में थे, अब उसकी जगह पे क्या यूज करने लग गए, हम नाम यूज करने लग गए। तो हमारे लिए नॉर्मल केस क्या होता है, नंबर्स से ज्यादा हमें याद क्या रहते हैं, नाम याद रहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में भी क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द बाइनरी कोड्स, नाउ व्हाट वर यूज्ड, नेम्स वर यूज्ड। फॉर एग्जांपल ए बी टोटल एंड सो ऑन। एंड इवन जो ऑपरेशंस दिए जाते थे उन ऑपरेशंस का भी नाम था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। सो असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब क्या है, एक हेल्पिंग एड होता है जिससे यूजर क्या रख सकता है, याद रख सकता है इंस्ट्रक्शंस को। As the computer can understand only the machine language, कंप्यूटर को फिर भी सिर्फ समझ में क्या आती थी, मशीन लैंग्वेज, लेकिन वो हमारे एज ए यूजर के लिए बनाई गई थी असेंबली लैंग्वेज। तो जो भी हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा था उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो ये चीज भी करनी पड़ती थी एंड उसके लिए प्रोग्राम्स लिखे गए। एंड प्रोग्राम्स क्या करते थे, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करते थे, मशीन लैंग्वेज में। और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कौन करता था, असेंबलर करता था। तो असेंबली लैंग्वेज में के ऊपर कौन वर्क करता है, असेंबलर। एंड फाइनली आउटपुट में क्या देता था, मशीन लैंग्वेज, POL, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हायर लेवल लैंग्वेज। Now the easiest form of the language is your higher level language, or it is called POL, that is procedure oriented language. It consists of sets of instructions and the symbols, and one can write the program using these symbols in addition to certain rules like English language. This was the easiest language. Why easiest language? Because it follows the rules like English language. These languages are oriented towards the problem to be solved rather than mere computer instruction. इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई ये किसको ध्यान में रखे बनाई गई, यूजर को ध्यान में रखे बनाई गई। और यहाँ पर यूजर अपने इंस्ट्रक्शंस देगा कंप्यूटर को, किसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देगा, अपनी समझ के हिसाब से। इट इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कंप्यूटर आर्किटेक्चर बट इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रोग्रामर। POL is more user-centered than machine-oriented. The most important characteristic of higher level language is that it is machine independent, and the programs which are written in higher level language can run on computers of different makes. यानी आपने एक प्रोग्राम लिखा तो वो प्रोग्राम हर मशीन पे रन करेगा। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, मशीन की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं देगा कि मशीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, उसमें कौन सा रैम है, उसकी लैंग्वेज क्या है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ क्या ध्यान देगा कि एक बार प्रोग्राम लिख लिया है तो वो हर एक कंप्यूटर पे वर्क करेगा। However, the programs written in higher level language needs to be translated into machine language, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। वो कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। और हम लोग अगर उसको लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमारे हिसाब से लिखी है वो देंगे तो वो कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, किसके फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये कन्वर्जन का काम कौन करता था, लैंग्वेज प्रोसेसर्स करते थे। द प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू लोअर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, इट इज नॉट HLL, इट इज लोअर लेवल प्रोग्राम, और यू कैन से मशीन लेवल प्रोग्राम। तो उनको क्या कहा जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। Now before proceeding further, let us understand something regarding our conversion. Conversion का मतलब क्या, आपने एक प्रोग्राम लिख दिया है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है, लेकिन कंप्यूटर को समझ में क्या आता है, 0 और 1 का ही कोड समझ में आता है। तो उसको कन्वर्जन करने का काम कौन करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। ऐसे दो कॉमनली लैंग्वेज प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं, एंड दैट आर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। Now let us understand the definition of source code. सोर्स कोड क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसे क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड कंटेन्स सम प्री डिफाइंड कीवर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी लैंग्वेज के हिसाब से जो डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं वही हम यूज करेंगे। एंड द सोर्स कोड इज जनरेटेड बाय होम, ह्यूमंस और द प्रोग्रामर्स। एंड ये सोर्स कोड कौन रिसीव करता है एज एन इनपुट, इट इज रिसीव्ड बाय द कंपाइलर एज एन इनपुट। एंड दैट इज दिस थिंग, सोर्स कोड को कौन रिसीव करता है, कंपाइलर रिसीव करता है।
Then is object code. Object code is the binary form code that is in the form of zeros and ones. ऑब्जेक्ट कोड इज मशीन रीडेबल फॉर्म. इसको ह्यूमन बींग्स नहीं समझ सकते हैं. कौन समझ सकता है? मशीन समझ सकता है. ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड बाय होम? कंपाइलर, बट इट इज जनरेटेड एज एन आउटपुट. सोर्स कोड जो है वो इनपुट है कंपाइलर का, एंड जो ऑब्जेक्ट कोड है वो क्या है? आउटपुट है कंपाइलर का. एंड इट इज इन विच फॉर्म? मशीन रीडेबल फॉर्म. Now we will deeply understand what is language processor. Language processors are special programs that accept user written program, यानी जो हमने प्रोग्राम लिखा है हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, एंड दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. और उसको चेक करता है, लेकिन क्या चेक करता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करता है. लेकिन चेक क्या करेगा? ग्रामर चेक करेगा. और किसका ग्रामर चेक करेगा? एज पर द लैंग्वेजेस. इफ इट इज करेक्ट, इट प्रोड्यूसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. There are two language processors, interpreter and compiler.